There are many questions we have for the Minister, but to set some context and for the benefit of our audience, sir. When we talk about Maharashtra's real estate landscape, it's incredibly difficult to define the trends of the moment because the evolution and the revolution is so fast-paced. All right? So, sir, if we were to walk down memory lane for a moment, when you first started your career, all right, and to fast forward to where we are now, what are some of the most remarkable trends in the real estate sector that have taken you by surprise, in spite of your background, in spite of your mastery and knowledge of the industry, sir? Thank you. Thanks for inviting me and giving me an opportunity to speak. The fact is that Mumbai is a city which welcomes everyone and gives chance to everyone. Only thing is that only 5 to 7% people can pinpoint the chance and take advantage and move forward. Most of the people only remember that time it was a opportunity for me and I am not opted for it. So all those people who are sitting here are from those 5% who has realized the opportunity and encash it. What surprises me the most in Mumbai, sorry. No problem. और आप सब लोगों के लिए, because you're that 5%, जोरदार तालियां हो जाए, please. जी बोलिए सर. Mumbai is full of surprises, but it is the only city which is most professional, full of honest people, full of hardworking young generation, and full of dreams. Adani ji was very big, but what he is now is only after he has started in Mumbai. Ambani ji was very big, but what he is now is only when he started in Mumbai. And all of us here and all of who are listening and will listen to Times Network, if they are in business, they want to become Ambani ji and Adani ji. Yes, if they are in politics, they think of Narendra Bhai Modi ji. What I want to say is this, that this city is always give chance to people who wants to move forward and give all the basic facilities for that. Only thing is that there are no shortcuts. You have to work very hard. You have to keep a long patience. And you should have the big dreams. So for me, I have come here as actually, I was practicing in Rajasthan. My father became a High Court judge, so I have to leave that and come here. 3 years, I was doing a job of very small salary of 2,000 and then 2,200. Changes 3 jobs. Then I started my material supply business, then the flat brokerage business, and the rest is the story. But in that story, what I learned, what I want to tell, what I want to share to the young generation is that continuous effort, honest effort, and lately what I realized about Mumbai is that Mumbai appreciate the best possible things. If you are having the very good hotel, you will have the waiting list. If you have a very good project, you will be able to get your rate, and that too with the very good peoples. So there is a very big sector in the Mumbai which always look for the best thing in their life. जी, और मंत्री जी आपने मुंबई की इतनी तारीफ जो की है, और एक दौर था जब रियल एस्टेट के एंगल से या अप्रिशिएशन के एंगल से अगर देखा जाए तो मुंबई को जन्नत माना जाता था, और आजकल चर्चा ये चल रही है कि टियर 2 और टियर इंडिया का पोटेंशियल इज इंडियाज फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी, ना कि द मेजर मेट्रोज. आपका इसके बारे में क्या कहना है सर? मुंबई आज भी जन्नत है, आगे भी जन्नत रहेगी. लकीली नॉट बिकॉज ही इज माई पॉलिटिकल लीडर, ही इज अवर चीफ मिनिस्टर.
I want to tell you with the core of my heart and very honestly want to share with you. मैंने मेरी 35 साल की पब्लिक लाइफ में देवेंद्र फडणवीस जी जैसा कमिटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉन्ग साइटेड लीडर देखा नहीं है। अभी परसों कल ही हमारी कैबिनेट थी और कल की कैबिनेट में जो एक रिजोल्यूशन पास हुआ, जो आज आपने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, तो जितनी मुंबई है उस मुंबई से 3 गुना बड़ी मुंबई, थर्ड मुंबई पनवेल के आगे बन रही है। और वो तालियां हो जाए, क्या बात है। वो केवल पेपर पे नहीं रहेगा। जैसा कि जब अटल सेतु बना था तब भी लोगों को ख्याल नहीं था कि ऐसा अटल सेतु बन जाएगा। जब कोस्टल रोड बनी तब भी लोगों को ख्याल नहीं आया। और आज आप सुबह के बाद 12 बजे के बाद कोई निकले होंगे तो वहां जो म्यूजिक बजना शुरू हुआ है, उसके बाद आपको पता लगेगा मुंबई के अंदर अभी जैसे ये एयरपोर्ट के लिए जो ट्रेन है, मेट्रो शुरू हुई है, 22-25 मिनट के अंदर आप ग्रांट रोड से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। ये सब चीजें ड्रीम थी। और उसी तरह से जो थर्ड मुंबई बन रही है, ये मुंबई, थर्ड मुंबई भारत का सबसे अच्छा शहर बनेगा। इसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ एमिनिटीज और बड़े बड़े लेआउट्स और सब कुछ जो पॉसिबल है। छोटा 5000 मीटर का भी प्लॉट वहां पर अवेलेबल होगा और 500 एकड़ का प्लॉट भी अवेलेबल होगा। सो ये सब कुछ वहां पर अगले 3 साल के अंदर हो जाएगा। उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बार बार एक बात कहते भी और उसको करवा के लेना भी उन्होंने शुरू कर दिया है कि अब मुझे 10 साल 15 साल वाले प्रोजेक्ट के बारे में सुनना भी नहीं और फॉलो भी नहीं करना है। जो प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद आप 5 साल में खत्म कर सको, वो प्रोजेक्ट हमको लोगों के सामने लाने हैं। और 5 साल को वो हर बार घटाते जा रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद तो आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट शुरू होंगे और 3 साल में प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इज व्हाट मुंबईकर डिजर्व, एंड दिस इज व्हाट द एनी बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड wants. If they want to give the good life to their people, they want this kind of infrastructure. क्या बात है, जोरदार तालियां। अब मंत्री जी, एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री का रियलिटी है, उसकी एक हकीकत ये भी है कि एम्प्लॉय अट्रिशन रेट्स आर जनरली हाई सर। बहुत एम्प्लॉय टर्नओवर होता है, शायद इसलिए बिकॉज अ लॉट ऑफ डेवलपर एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैमिलीज आर फैमिली ओन्ड एंड ऑपरेटेड मल्टी जनरेशन बिजनेसेस। तो सरकार की ओर से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी चेंज? या तो कंट्रैक्चुअल वर्कर्स को परमानेंट बना दिया जाए या मोर फ्रेंडली प्रमोशन फ्रॉम विद इन। सर, व्हाट कैन चेंज? ऐसा हम क्या कर सकते हैं या सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं सच दैट इट्स अ लेस फ्रैगमेंटेड स्पेस? आप क्या राय देना चाहेंगे? मैं भी बिजनेस में नहीं, बिजनेस अभिषेक संभालता है, फिर भी जो मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपने जो बताया कि बहुत ज्यादा लोग छोड़ के चले जाते हैं, करते हैं, इट्स ए फैक्ट। पर उसका कारण क्या है? उसके बहुत सारे, एक कारण तो ये भी है कि बहुत सारे बिल्डर्स, करीब करीब हर कोई आदमी अभी रियल एस्टेट में आना चाहता है जी। तो एक साथ में बहुत सारी रिक्वायरमेंट निकली है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ कोई बहुत प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है और इसलिए लोग ही बहुत कम हैं। अभी किसी को लाइसेंस में करना हो काम, तो मुंबई में लाइसेंस के बिना तो कोई कंपनी चलती नहीं है। जैसे आप में से कोई लोग यदि गुजरात से कनेक्टेड होंगे तो अहमदाबाद में कोई लाइसेंस डिपार्टमेंट ही नहीं होता है, वहां तो आर्किटेक्ट ही सब कुछ करके ले आते हैं और या लाइसेंस के डिपार्टमेंट के बिना कोई रियल एस्टेट कंपनी काम नहीं कर सकती है। पर लाइसेंस के लिए हमारे पास में कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। हमारे पास में सेल्स के लिए भी, रियल एस्टेट की सेल के लिए कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। कंस्ट्रक्शन के मैनेजमेंट के लिए थोड़े बहुत कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अब धीमे धीमे ये, वैसे सेकंड बिगेस्ट जॉब गिवर है कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन फील्ड, पर इसके बाद भी इसके अंदर अभी तक कोई ऑर्गेनाइज वे के अंदर कोर्सेज शुरू नहीं हुए हैं। और इसके लिए ये जो टर्न अराउंड है वो आप देख रहे हैं। और उसमें एक ये भी हो गया है कि लोग प्रोजेक्ट पहले ले लेते हैं, कंपनी बाद में बनाते हैं। और इसलिए प्रोजेक्ट लेने के बाद में अभी कंस्ट्रक्शन करना है तो लाओ इसका आदमी उठा के लिया, ये कंपनी अच्छी चल रही है। रियल एस्टेट करना है, लाइसेंस करना है तो किसी ऑफिसर से पूछ लेते हैं भाई कौन कौन अच्छे आदमी है, तो वो बता देता है कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी अच्छा है। तो उनकी टीम लग जाती है उसको टेप करने के लिए। और आज कोई भी क्या करेगा, यदि आपके पास में अभी आप किसी को 5 लाख का पैकेज दे रहे हैं और यदि सामने वाला उसको कहेगा कि 15 लाख रुपया दो पर तुम मेरे पास में आ जाओ, तो कोई अपने यहाँ पर वो अमेरिका की तरह कमिटमेंट तो रहता नहीं है कि भाई एक बार मैंने कर दिया है तो अभी मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। तो ये चलता रहेगा, इसको वी हैव टू फेस विद इट। ओनली थिंग इज दैट वी शुड गिव गुड फैसिलिटी टू अवर स्टाफ, वी शुड ट्रीट देम एज ए एसोसिएट एंड उनको भी ये विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पर लॉन्ग रन के अंदर हमारा फ्यूचर
दूसरी कंपनी में चेंज ओवर करने जाएंगे तो भी यहाँ पर हमारा अच्छा रहेगा। जी, और सर यही मुद्दा कुछ ही देर पहले उठा था कि अगर मुंबई को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, तो रीडेवलपमेंट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पर सर रीडेवलपमेंट का सबसे बड़ा शायद चैलेंज या दिक्कत ये होगी लैक ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। सर कई बार बात यहां अटक जाती है कि इससे सोसाइटी मेंबर्स, चाहे सेक्रेटरी हो या चेयरमैन हो या ट्रेजरर हो, उनको अंदर ही अंदर कोई फायदे मिल रहे हैं, इसलिए वो इस बिल्डर का साथ देंगे ना कि उसका, वगैरह वगैरह। तो जो ऑर्डिनरी टेनेंट है सर, उसके पास एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, एक लैक ऑफ विजिबिलिटी है। इसको लेके आप क्या राय देना चाहेंगे? सोल्यूशन क्या है सर, जिससे कि अगर मैं एक बिल्डिंग में रह रही हूं, मेरा उतना हक है उस डिसीजन में अपना शेप देने का। नहीं, मुझे अभी आपके 3-4 सवाल के बाद में आपसे एक सवाल करना पड़ेगा कि आप टाइम्स नेटवर्क से आई हैं कि आप कोई रियल एस्टेट कंपनी को बिलोंग करती हैं? आपको सब अंदर की स्टोरियां पता है। जी, तो ऐसा है कि ये तो सबसे बड़ा चैलेंज रीडेवलपमेंट के लिए, यस, आप जो बता रही हैं वो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स, लाइजनिंग, ये सब लाइकिंग्स, ये सब चलता रहता है। पर मेरे ख्याल से वो बहुत छोटा सा इश्यू है। मेन इश्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का है। मुंबई जब बना था तो मुंबई बना था बंगलोज के लिए, मुंबई बना था, बहुत कुछ बना तो ग्राउंड+1, ग्राउंड+2 की चाली के लिए। अभी वो ग्राउंड+2 की चाली, रोड वही रह गई, ड्रेनेज वही रह गया, वाटर सप्लाई सिस्टम वही रह गया, पार्किंग वही रह गया, फुटपाथ वही रह गए, और ग्राउंड+2 की चाली बाद के अंदर ग्राउंड+7 की बिल्डिंग में कन्वर्ट हो गई। और अभी पिछले 4 सालों के बाद में, 4 सालों से तो ग्राउंड+7 की बिल्डिंग अभी ग्राउंड+25 और ग्राउंड+30 की बनती जा रही है। तो इसका एंड क्या आने वाला है? ये तो ना तो रोड बड़ी हो रही है, ना कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है। तो वो रियल चैलेंज है। और ये आगे आने वाले समय में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो लोगों को घर तो बहुत अच्छा दिखेगा, पर थोड़े दिनों के बाद में ऐसा मन होगा कि घर के बाहर निकलूं ही नहीं, घर के छोटे कॉर्नर में लैपटॉप लगा के वहीं से मैं ऑफिस चलाऊं तो ज्यादा अच्छा है, सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन तो। क्योंकि ये ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी सरकार ने एक अच्छा काम किया, कॉन्क्रीटेशन ऑफ रोड किया, पर उससे रोड की क्वालिटी सुधर सकती है, रोड की कैरिंग कैपेसिटी नहीं सुधर सकती। और कुछ हमारे लोगों की आदत भी है, अभी कोई भी रोड ऐसी नहीं है कि जिसकी कम से कम 1 लेन या 2 लेन पार्किंग में बंद नहीं रहती है। यदि वो पार्किंग की गाड़ियां, जो पब्लिक पार्किंग अवेलेबल है, 25,000 से ज्यादा पब्लिक पार्किंग मुंबई शहर के अंदर और मुंबई के विभिन्न इलाकों में खाली पड़ी है। पर हम लंदन अमेरिका में जाएंगे तो 200 मीटर दूर अपनी गाड़ी लगा के आएंगे और रूल के हिसाब से चलेंगे, पर यहाँ तो हमको घर के बाहर ही गाड़ी लगानी है। तो वो जो रोड की कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है और सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कमजोर हो चुका है, इसका कोई इलाज किसी के पास में नहीं है। भगवान श्री राम भी एक बार वापस आ जाए वनवास के बाद धरती पर तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए तो मुंबई के बाहर थर्ड मुंबई बनाना, मुंबई के बाहर डेवलपमेंट करना, और उसको लोग वहां, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो जैसे अपन देख रहे हैं, दिल्ली का आप एग्जाम्पल ले लो, दिल्ली बहुत सुंदर थी, पर दिल्ली दिल वालों की, पर दिल्ली जब नोएडा बन गया तो लोग नोएडा को दिल्ली से भी ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर सारा आ गया। ऐसा जो भी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी थर्ड मुंबई बना रहे हैं, उसका यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा आ गया और साथ में जॉब क्रिएशन भी आ गया। नवी मुंबई उस समय बहुत साल पहले बना था, पर वो इतना सक्सेस इसलिए नहीं हुआ कि वह जॉब क्रिएशन साथ में नहीं था। तो यदि अभी जो माननीय देवेंद्र फडणवीस सोच रहे हैं, उसमें जितना वहां पर लोग रहने को आ रहे हैं, उतना ही वहां पर जॉब क्रिएशन भी हो रहा है, वॉक टू वर्क वाले सिस्टम के अंदर। तो ये थर्ड मुंबई वाला कंसेप्ट यदि सक्सेस होगा तो ये जो शहर में रहने वाले पुराने लोग हैं, उनकी लाइफ भी अच्छी होगी। क्या बात है। और मंत्री जी, जो हमारे ऑडियंस में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, शायद उनके सामने 2 रास्ते हैं या 2 तरह की सोच हो सकती है। एक शायद ये कि आई मिस द मोमेंट, वो मौका गया, मैंने गवा दिया, इट्स टू लेट। और शायद दूसरी सोच ये हो कि जब जागो तब सवेरा। आप इन दोनों सोच में से किस में ज्यादा यकीन रखते हैं? नहीं, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है मुझे मालूम नहीं है, पर मुझे बेसिकली लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जिसको भी करना होता है उसके लिए शेयर मार्केट बेस्ट होता है। आपको ज्यादा से ज्यादा सेकंड हाउस के लिए, रेंटल इनकम के लिए तो रियल एस्टेट ठीक नहीं, पर अभी मैं लूंगा और 2 साल के बाद बेच दूंगा, तो वो समय अभी कोई मेरे हिसाब से तो चला गया है। क्योंकि इतनी ज्यादा सप्लाई है, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, इतनी ज्यादा बढ़ रहा है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ उसमें से बेनिफिट मिलेगा क्या।
आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, वापस कैंसिलेशन कराओगे, ये करोगे, वो करोगे, ब्रोकरेज दोगे, इसकी बजाय तो एक हाउस खुद के लिए रखो, ज़्यादा से ज़्यादा एक सेकेंड हाउस रख लो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, हालांकि मैं एक रियल एस्टेट कंपनी से बिलोंग करता हूँ, मेरी ब्रेड एंड बटर रियल एस्टेट कंपनी से ही चलती है, इसलिए अगेंस्ट माई बिजनेस है, फिर भी सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। हाँ, और सर एक आखिरी सवाल आपके लिए, सिर्फ आखिरी सवाल। सर अगर आपको एक ही लाइन में जवाब देना हो, मुंबई के लिए आगे की दौर में आपका क्या विजन है सर? मुंबई रियल एस्टेट एज वी नो इट क्या बदलेगा और क्या वैसा का वैसा ही रहेगा, और आपका कंट्रीब्यूशन? मुंबई का रियल एस्टेट तो कितना बदलेगा मुझे मालूम नहीं है, पर रियल एस्टेट के लोगों को जरूर बदलना चाहिए। कैसे बदलना चाहिए? क्या तो बात है। मैं दो बातें जरूर सबसे शेयर करना चाहूंगा। सॉरी फॉर इट। नो प्रॉब्लम सर। एक तो मैं जो भी रियल एस्टेट के लोग बैठे हैं यहाँ पर, उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि बिजनेस के अलावा भी एक लाइफ होती है, और इसलिए आप कहीं न कहीं कोई न कोई रोल ऐसा करिए कि जहां पर आप में कुछ आपको पावर सीट मिलती हो। जैसे कि कुछ नहीं होगा तो अपनी सोसाइटी का चेयरमैन बनिए, अपने क्लब के चेयरमैन बनिए, जिस क्लब में भी आप जाते हैं। रियल एस्टेट के किसी में जाइए, अपने जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी के अंदर कुछ आप पद बनिए, क्योंकि आज के समय के अंदर बिना पावर के आपका रिकॉग्नाइजेशन कुछ ज्यादा होता नहीं है। पैसे तो आपके पास बहुत रह जाएंगे, पर पैसे वो आपके पास ही रह जाएंगे। जब आपके पास पावर आता है, आप लोगों में मिक्स होते हैं, तो ही आपकी सक्सेस रेट बढ़ती है। तो मेरा मानना है कि रियल एस्टेट के लोगों को आने वाले समय में पब्लिक से ज्यादा मिक्स होना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा जाना और अपने आप को ज्यादा एसर्ट करना, ये तीन चीजें करने के बाद ही हम लोग सरकार के साथ में हमारे पर्सनल संबंध होने चाहिए। सरकार राइट है कि रॉन्ग है, सरकार होती है और किंग इज ऑलवेज राइट। और इसके लिए अदर देन बिजनेस भी आपके यदि अधिकारियों से और लोगों से संबंध है, तो ही आप रियल एस्टेट के अंदर दूसरों से आपकी लाइन थोड़ी अलग और बड़ी खींच पाएंगे। Ladies and gentlemen, Shri Mangal Prabhat Lodha, the Honorable Minister. Huge round of applause, please.